Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I am here with Class 7 NCERT CBSE syllabus, chapter Motion and Time. And in this video, today I am going to talk about motion and its different types, slow and fast motion, then what is speed and how can we measure speed. Also, I am going to talk about the distance time graph. So stay tuned. Before I start my video, I request each and every one of you to kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So first of all, what is motion? We are going to talk about motion. So हमें पता होना चाहिए motion होता क्या है. What is motion? In physics or in science language हम motion कब बोलेंगे? जब कोई object अपनी place change कर रहा है with the time. Okay? So in motion means an object is said to be in motion if its position is changing with the passage of time. Then इसका opposite होता है rest, which means if the position of the object remains unchanged, position change नहीं हो रहा है object का, okay? और time move होता है, time आगे forward चल रहा है लेकिन place change नहीं कर पा रहा है object, तो उस object को हम बोलेंगे that the object is in rest. So motion and rest. अभी इसी motion के हम different types पढ़ेंगे बच्चों. Already you have studied different types of motion in class 6. So I am going to give a quick revise about all the different types of motion. अगर आप लोगों को याद नहीं है कि types of motion क्या है, तो I have made a detailed video of type of motion. You can go through those videos and see the different types of motion in detail. So the first motion is the rectilinear motion. So what is rectilinear motion? The motion of a car on a straight road and all the athletes, okay, जो running करते हैं straight track में. So the motion of an object that moves in a straight line, okay. So what is rectilinear motion? Straight line में अगर object move कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं rectilinear. Linear मतलब होता है straight line. Now coming to the next type of motion, that is the circular motion. So as the name suggests, circular क्या होगा? Circle में motion होएगा. Yes, the blades of the fan, the hands of the clock. So the motion in which the object will move along a circular path. Okay, straight path में नहीं है. Circular path में अगर कोई object move करेगा, so we will say the object is in circular motion. Coming to the third type of motion, that is the periodic motion. The examples you can see here is the pendulum. Okay, so what is periodic motion? The motion in which object will repeat its motion after some time. Okay, it is going to repeat its motion. अभी इधर जा रहे हैं, then it's coming back here like this. It is repeating the motion. So it is known as the periodic motion. Also in class 6th, we have studied about the different combination of motions. There are many machines or many activities we are doing where there is a combination of motions, not only single motion, but many motions come together. Like for example, here you can see a boy is playing football. So the ball which will be moving, the motion of the boy, these all, there are different combination of motions, right? Rectilinear motion, rotational motion, all these type of motions are taking place all together. So I hope you have understood what are the different types of motion. Still, if you have any doubt, you can go through my previous video in which I have taught you about the different types of motion in detail. Now coming to the next type, that is the slow or fast motion. कोई भी motion को हम slow कब बोलेंगे और fast कब बोलेंगे? So the distance moved by objects in a given time interval, एक particular time interval में कोई object कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है उसको देखकर, उसको मेजर करके हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो है क्या फास्ट है. बट द टाइम इंटरवल हैज टू बी द फिक्स्ड. ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट की हम बात करें, इन दोनों में से फास्ट कौन सा मूव कर रहा है, स्लो कौन सा मूव कर रहा है, तो वी विल सी द डिस्टेंस विच दे आर कवरिंग
एट अ फिक्स टाइम. ओके, एक गिवन टाइम में वो दोनों में से जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज मूविंग फास्ट. ओके, द ऑब्जेक्ट हु विल टेक द शॉर्टेस्ट टाइम विल हैव द हायर स्पीड, बट the distance have to be the same. Okay, now let's talk about very important point of this chapter, that is the speed. So what is speed, students? Speed is nothing but the distance covered by an object in a unit time. Unit time में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम स्पीड बोलते हैं. ओके, सो द फॉर्मूला कम्स हियर इज द total distance covered by the total time taken. Okay, this is how we can measure the speed. So the units here are kilometer per hour and meter per second. किलोमीटर में अगर डिस्टेंस रहेगा तो टाइम बच्चों हमें आवर्स में लेना है, और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम हमारा सेकेंड्स में होना चाहिए. ये आपको याद रखना है व्हेन यू आर ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, जब आपको स्पीड निकालें बोलेंगे ना, तो डिस्टेंस देंगे और टाइम देंगे, तब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो योर टाइम शुड बी इन आवर, एंड इफ द डिस्टेंस गिवन इज इन मीटर्स द टाइम हैज टू बी इन seconds. Okay, so this is the formula for measuring the speed, that is the total distance covered upon the total time taken. Now let's talk about what is uniform motion and what is non-uniform motion. As the name suggests, uniform, it means same. Okay, uniform मतलब एक जैसा, right? So uniform motion means a body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. What does it mean? So here in this example you can see a car is moving. ओके, एक कार मूव कर रहा है, उसने डिफरेंट जगह पॉइंट बताया है. एक पॉइंट O है, A है, B है एंड C है. डिफरेंट पॉइंट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है. ओके, यहाँ पे दिया है ये 0 मीटर से स्टार्ट हो रहा है. जस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, देन 8 मीटर एंड देन 12 मीटर. तो डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर का डिस्टेंस है. और इफ यू सी हियर, डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड. पहले 4 मीटर कवर करने के लिए उसको 2 सेकेंड लगे. नेक्स्ट 4 मीटर कवर करने के लिए भी उसको 2 सेकेंड्स लगे. देन अगेन द नेक्स्ट 4 मीटर ही इज कवरिंग इन 2 seconds again. So here you can see the distance traveled here is 4 meter and the time taken is 2 seconds, right? It means the body is traveling or covering equal distance in equal interval of time, right? So in this case, remember the object will move along a straight line with a constant speed. ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट. सो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में. स्पीड बढ़ नहीं रही है कहीं भी, सेम ही स्पीड से मूव हो रहा है, तो स्पीड रहेगी हमारी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन. रिमेंबर दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सब बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होएगा? जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. Okay, so now let me explain you this with the same example. But now the car is moving, covering the same distance 4 meter. But time is here 2 seconds. Now he is taking 1 second here and here also 1 second. So अभी देखेंगे तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस तो 4 मीटर वो ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, लेकिन बच्चों क्या हो रहा है? टाइम देखो, पहले उसने 2 सेकेंड लिया, देन वो 1 सेकेंड ले रहा है, देन अगेन 1 सेकेंड ले रहा है. मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कम लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? मतलब इंक्रीज हो रही है ना, तभी तो वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर पा रहा है. दैट मीन्स द स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट हियर. ओके, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. सो यहाँ पे टाइम इंटरवल कम लग रहा है, दैट मीन्स द स्पीड इज इंक्रीजिंग. अभी इसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं. द कार इज मूविंग बट first 4 meter he is covering at 2 seconds. Okay, now 4 से 8 मीटर तक जाने के लिए उसको अगर मैं बोलती हूँ 4 सेकेंड लग रहे हैं, देन 8 से 12 अगेन 4 मीटर कवर करने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस सेम है, देखो 4 मीटर का है, बट टाइम क्या हो रहा है? पहले 2 सेकेंड्स लग रहे थे, अभी 4, देन अगेन 6 सेकेंड्स. दैट मीन्स द स्पीड कम हो गई है उसकी, तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना. डिस्टेंस तो सेम ही है, 4 मीटर है, बट टाइम इज टेकिंग मोर. दैट मीन्स द स्पीड इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? द स्पीड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट बट इट मे इंक्रीज और डिक्रीज.
Okay, so in this case the speed of an object along a straight line keep changing. So now let's again see how we are going to measure the speed. So the average speed we can say is the total distance covered upon the time taken, the total time taken. Okay, so if we have to find distance, what we can do, we can directly multiply speed with the time. Again if we have to find the time taken, तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से. तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत यूजफुल है. न्यूमेरिक्स इसके बिना हम कर ही नहीं सकते. न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इन फॉर्मूलोज को यूज करेंगे. देन एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपने देखा हो कि कार्स होगी, आपकी बाइक होगी, स्कूटी होगी, उन सब में आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है, डिवाइस है. ये क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर. ओके, एंड इट इज गोइंग टू मेजर द स्पीड. ओके, आपने देखा होगा ये जो इसका निडल है ये मूव करता है आगे आगे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है. यस और नो? सो दिस विल मेजर द स्पीड एंड शो यू, डिस्प्ले इट ऑन दी बोर्ड. ओके, इसी तरीके से एक और डिवाइस है ओडोमीटर एंड दिस डिवाइस इज गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड. कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है वो इधर दिखता है हमको. ओके, ये मूव होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, आगे आगे नंबर्स शिफ्ट होते रहते हैं. तो दीज टू डिवाइस यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज द स्पीडोमीटर एंड द ओडोमीटर. स्पीडोमीटर है स्पीड मेजर करने के लिए एंड ओडोमीटर है हमारा डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड. So I hope you have understood all this. Till here everything is clear. Now we are going to talk about the most important part of today's video, that is the graph. And the graph we are going to plot against distance and time. Distance and time के against हम plot करने वाले हैं. मतलब क्या है, हमारा एक एक्सिस में distance रहेगा और एक एक्सिस में हमारा time रहेगा. Okay? सो फर्स्ट ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन का है. यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यस, इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हियर यू कैन सी डिस्टेंस जो कि हमने वाई एक्सिस में दिखाया है 10, 20, 30, 40. यस, यू कैन सी. तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया. इस दे डिस्टेंस मीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर्स में हो सकता है, किलोमीटर्स में हो सकता है, किस में भी हो सकता है. ओके, तो ये हमने ग्राफ में प्लॉट किया है वाई एक्सिस में. टाइम हमने प्लॉट किया है अपना एक्स एक्सिस में. यहाँ पे ये 1 सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, या तो आवर हो सकता है. ओके, सो ये हमने कर दिया है प्लॉट एक्स एक्सिस में. अभी लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर प्लॉटिंग दिस. एज वी सेड, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, अभी ये 10 मीटर या सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में. ओके, सपोज वी आर सेइंग दिस एज किलोमीटर्स. सो 10 किलोमीटर ये कवर कर रहा है 1 मिनट में. तो हमारा पॉइंट किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा. यस, सेम वो नेक्स्ट फिर 20 किलोमीटर तक पहुंच रहा है, मतलब 10 से 20 पहुंच रहा है. अगेन 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर उसको टाइम लग रहा है 1 ही मिनट का. ओके, मतलब यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट का टाइम लग रहा है उसको. ओके, इसी तरीके से 30 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 3 मिनट में एंड 40 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है 4 मिनट में. तो जब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो हमारी लाइन कैसे आएगी? यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? दैट मीन्स द स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में. सेम डिस्टेंस एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम. So this graph is showing that the body, the object is in uniform motion. Uniform motion का मतलब ही है it is having constant speed. Understood? Now going to the next graph, we will talk about the non-uniform motion. Non-uniform motion में क्या हो रहा है? Equal distance travel नहीं हो रहा है. Okay, distance travel हो रहा है, लेकिन टाइम हम 1 सेकेंड या 1 मिनट का ही पकड़ेंगे. Okay, so let's see. I will try my best to explain you this. So here you can see again the distance is plotted in y-axis and time is being plotted in the x-axis. Okay? अभी टाइम यहाँ पे अगर हमारा 1 सेकेंड है या मिनट, कुछ भी ले सकते हैं. सपोज इट इज मिनट्स एंड हियर इट इज किलोमीटर्स. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर इन 1 मिनट
the body is covering 20 kilometers, right? In 2 minutes, if you see, it is traveling 25 kilometers. तो फर्स्ट मिनट में तो उसने कितना ट्रैवल किया? पहला जो मिनट था उसमें उसने 20 ट्रैवल किया, जबकि जो सेकंड मिनट में था उसने सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, राइट? सो हियर यू कैन सी इन दी फर्स्ट मिनट ही इज ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर, इन द सेकंड मिनट ही इज ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, एंड इन द थर्ड मिनट इज ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर्स. ओके, तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ध्यान से देखना है. इन द फर्स्ट मिनट वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन सेकंड मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है, एंड द थर्ड मिनट में भी वो सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. तो क्या डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है वो? नो. पहले उसकी स्पीड इंक्रीज थी, है ना, फिर क्या हो गया? धीरे धीरे स्लो हो गई स्पीड. अभी आप फोर्थ मिनट में जब देखोगे तो फोर्थ मिनट में वो पहुंच जा रहा है 40 में. ओके, फिर 30 से 40 पहुंचा. दैट मीन्स अगेन इन द लास्ट मिनट, जब फोर्थ मिनट की बारी आई, अगेन उसने 10 किलोमीटर बढ़ा दिया अपना. ओके, सो क्या हो रहा है? पहले तो स्पीड इंक्रीज थी, फिर थोड़ी सी स्लो हुई, फिर इंक्रीज हो गई, राइट? सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट? सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इजिली आप बता कर सकते हो, अगर स्ट्रेट रहेगा तो यूनिफॉर्म है, अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ग्राफ तो यू कैन से दैट इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, so I hope you have understood uniform and non-uniform motion. Now the third is when the object is at rest. That means object move ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे पड़ा है. ठीक है, so you can see object ने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और यहीं पे रुका हुआ है. आगे वो बढ़ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि कवर नहीं कर रहा. 150 पहुंचा नहीं है, 200 पहुंचा नहीं है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रुका हुआ है. कहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट वन प्लेस ओनली. ओके, इन 100 किलोमीटर्स वो लाई कर रहा है. टाइम क्या हो रहा है? 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया. टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है. सो इफ यू आर प्लॉटिंग टाइम इन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, और हमारी लाइन टाइम के पैरेलल लाइन में आ रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ रही है ग्राफ, समझ जाने का. ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है. ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल मूविंग. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. So I hope you have understood all the 3 graphs. The first was uniform motion. The object will have a constant speed. Second, the object will have non-uniform motion. Okay, the speed is not constant. And third, the object is at rest. The graph will be a line parallel to the x-axis, and in x-axis there will be time. So that's all for today, students. Let's quickly revise what all we studied. Today we studied about the motions and its different types, slow and fast motion. We studied about what is speed. We have seen the formula for speed and how we can calculate speed. Then we have also studied about the different distance time graph. A body which is in uniform motion, a body which is in non-uniform motion, and also if the body is at rest, उसका distance time graph कैसा रहेगा. Okay, so I hope you have understood all these topics. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And before I leave, I request everyone to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.